Hi guys, so welcome to Prep IAS. This is a 3-month free crash course for UPSC prelims. The course basically started on 17th March and will continue till 20th June. On 27th June you have your prelims exam, so the course will end 1 week before the final day. Then we have in this course we are we are comprehensively covering the syllabus of UPSC CSE prelims. Then the course also include 5 high quality full length mock tests. Everyone should attempt these tests. The whole course is being taught by faculties who have cleared prelims and mains exam multiple times, so you can utilize their experience, you can utilize their learning, you can ask lot of questions from the faculties. Then there is a coverage of static portion as well as dynamic portion. Study material notes are uploaded on Telegram channel of Prep IAS. Link for which is in the description of the video. Is in the description of the video. Doubt clearing session on every Sunday to ensure complete clarity on the topics. Then CSET is also included in the crash course, right? So we start our today's lecture number 21. This is lecture 21. So in this lecture we are going to understand various government schemes. I try to take up maximum possible schemes of last 2-3 years and which are also in news from last 2 to 3 years. I will be taking those schemes, right? So these schemes are extremely important because with current pattern, every alternate year there are two questions from the scheme part also. So schemes yani two question means directly 4 marks. 4 marks is very important for prelims examination. So starting with the scheme first can be divided into two categories. First is central sector schemes, right? So central sector schemes and the centrally sponsored schemes, right? सो सेंट्रल स्कीम्स सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो पूरा का पूरा जिनका फंड यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा ही ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही किया जाता है, right? Central sector schemes are mainly formulated on subjects from the union list. This is important. तो central sector schemes है ये they are mainly, not always, remember the word, it is not always, not always. ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछा जाए कि always या फिर never from state list, तो ये ऑप्शन आपके हमेशा गलत रहेंगे. Mainly it is formulated on the subjects from the union list. ठीक है, they account for around 11% of the central government expenditure, right? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 11% आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है. Then next comes your centrally sponsored scheme. Like in this, a certain percentage of fund is provided by the center and the rest is to be borne by the states. यानी इसमें सेंटर और स्टेट्स सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में देयर इज अ शेयरिंग ऑफ फंड. ठीक है, अब वो शेयरिंग ऑफ फंड किसी भी रेशियो में हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 50:50, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 60:40, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 70:30, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 70:75 एंड ऑल्सो 90:10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, राइट? So centrally sponsored schemes are formulated in subjects from the state list. याद रखना, again the word is mainly, not always. ठीक है, to prioritize in areas that require more attention. They account for लगभग 10% of central government expenditure. ये दोनों क्वेश्चन भी यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं, दोनों को स्टेटमेंट में डाल के दिया जा सकता है. ठीक है, देन जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, दिस इज योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, these centrally sponsored schemes are further categorized into two categories. First is the core of the core schemes. ये वो स्कीम होती हैं जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने के बाद भी पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है. ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य होते हैं सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, राइट?
सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कोर स्कीम्स, फर्स्ट इज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, राइट. देन कम्स द कोर स्कीम. दीज स्कीम्स आर फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ 60:40. ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स एंड 8 नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिमालयन स्टेट इन द रेशियो ऑफ 90:10. आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ on what parameters special category states are decided. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर डिसाइडेड, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डिसाइड की जाती हैं. ठीक है, आप लोग मेरे को एक कमेंट करके बताओ. देन कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्या होती हैं और कोर स्कीम्स क्या होती हैं. ठीक है, एंड दिस रेशियो नॉट इज नॉट ऑलवेज 60:40. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, it can be 70:30 also, it can be 75:25 also. The main thing is there is a sharing of the fund between the central and the state government. Right. So next comes your national social assistance program. ठीक है, this is the first scheme that we are going to discuss. This is the one of the core schemes. ठीक है, इसमें जो वेलफेयर प्रोग्राम है इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं वो हैं एजेड पर्सन्स. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है तो इसकी 100% फंडिंग कौन करेगा? 100% फंडिंग कहाँ से आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी, राइट. तो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है? एजेड पर्सन्स, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन्स एंड bereaved फैमिलीज ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर, राइट. जब प्राइमरी डेड जो मेन बंदा होता है फैमिली में जो अर्न करता है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रेड विनर. ठीक है, तो इसमें 4 कैटेगरी आपका रहेगा. ठीक है, ये आपका सॉरी 5 कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज रहेंगे. सबसे पहले एजेड पर्सन यानी 60+ यानी सीनियर सिटीजन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन्स, then the families after the death of primary breadwinner and those belonging to poverty line households, right. So इसके अंदर बेसिकली 5 स्कीम आती है. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये किसके लिए हो गई? आपकी एजेड पर्सन्स के लिए हो गई. एजेड पर्सन के लिए हो गई और ये आपकी विडोज के लिए हो गई. ठीक है, ये आपका डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हो गई, राइट. एंड देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये आपका bereaved फैमिलीज के लिए हो गई. ठीक है, एंड टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, दिस इज अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा मतलब जो अभी हमारा पीडीएस सिस्टम चलता है ना, उसके बेसिस पे अन्नपूर्णा स्कीम. अभी इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे. ठीक है, तो 100% सेंट्रल असिस्टेंस इज एक्सटेंडेड टू द स्टेट्स एंड यूटी. अच्छा, मैं यहाँ से एक और चीज बता देता हूँ कि जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है ना, उसमें जो ये स्कीम होती है वो इम्प्लीमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा. ठीक है, जबकि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में होता है कि भले ही फंडिंग 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही हो, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स मनरेगा स्कीम. मनरेगा स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. ठीक है, इसमें सब लोगों को आइडिया है, बट देखो मनरेगा स्कीम का कमाल मैं बताता हूँ आपको. मनरेगा स्कीम बहुत कॉमन है, सबको पता है, 2005 में स्टार्ट हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के तहत आती है. बट द थिंग इज, जब भी इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है ना, वहां फंस जाता है बच्चा और वहां पे वो गलती कर जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली रूरल एरियाज के लिए है. एटलीस्ट 100 डेज का गारंटीड डिमांड बेस्ड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. ठीक है, स्किल्ड नहीं, ओनली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन होंगे इसके? रूरल पॉपुलेशन जो काम करना चाहता है. ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स एंड सीजनली अनएम्प्लॉयड. 3 कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज रहेंगे. ये आपका एक और पॉइंट यहाँ से ऐड कर दो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत एग्जीक्यूट की जाती है. ठीक है, और इसमें 100% असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? 100% असिस्टेंस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, बेनिफिशियरीज कौन कौन रहेंगे? सबसे पहले रूरल पॉपुलेशन, दूसरा अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स एंड सीजनली अनएम्प्लॉयड, राइट.
60:40 वेज एंड मटेरियल रेशियो कंसेप्ट चलता है इसमें। नो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मशीनरीज अलाउड, कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरीज के अंदर अलाउ नहीं है, सारा का सारा अनस्किल्ड मैनुअल वर्क चलेगा, ये याद रखना। मशीनरी और कॉन्ट्रैक्टर्स अलाउ नहीं है, सारा का सारा इसके अंदर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क चलेगा। वेजेस जो होती हैं दे आर लिंक्ड टू सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। देन इफ द वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, आपको अप्लाई करा और आपको 15 दिन के अंदर वर्क नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल दिया जाएगा, राइट, 15 दिन के अंदर अंदर। देन अगर 15 दिन आपने अप्लाई करा काम के लिए पर आपको 15 दिन में काम नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। मनरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखो, हम सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग याद रखना कि जो वेजेस है मनरेगा के अंदर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के साथ लिंक्ड है, ठीक है। आपने जब इन्फ्लेशन वाला चैप्टर देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, तो मैंने लेक्चर नंबर 18 में ये बात करी थी आपसे, ठीक है, लेक्चर नंबर 18। आप नहीं पता आपको ये क्या होता है तो जाके एक बार लेक्चर नंबर 18 देख लेना, प्लेलिस्ट में एडिट होगा, राइट। So Manrega is to be implemented mainly by the Gram Panchayats. At least 1/3 beneficiaries shall be women. These points should be remembered. ठीक है, इसमें at least 1/3 beneficiaries women होनी चाहिए। सोशल ऑडिट्स जो है वो लगातार होने चाहिए बाय द ग्राम सभा एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स, हर एक 6 महीने में कम से कम एक बार तो सोशल ऑडिट इसका होना ही चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन comes your focuses on creation of durable assets as per the local needs, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स, मैंने आपको बता दिया, अनस्किल्ड मैनुअल, दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% वेज कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, ठीक है। 100% अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, and 75% of the material cost including the wages of skilled and semi skilled workers, ठीक है। तो अब यहाँ से आप, मुझे पता आप लोगों को कंफ्यूजन होगा 60:40 वेज और मटेरियल रेशियो का क्या मतलब है। देखो, अगर सपोज इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर 1000 रुपये दिया गया है, 1000 रुपये बजट तय किया गया है, तो उसमें से आपका 600 रुपये वेजिस के लिए रखा जाएगा और 400 रुपये आपका मटेरियल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेजेस हैं आपकी, ये जो वेजेस हैं ये अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स के लिए हैं, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये 100% कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है। और ये जो मटेरियल कॉस्ट है दैट इज ₹400, ठीक है, 40%, इसमें से 75% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 25% आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। यानी इस 400 का 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और जो बचा हुआ है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्लियर है मनरेगा आप लोगों को, ठीक है। ये वाले पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनरेगा पे हर ऑल्टरनेट ईयर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये तो कोरोना के बाद से काफी ज्यादा न्यूज में भी है क्योंकि देयर इज अ डिमांड फॉर अर्बन मनरेगा, देयर इज अ डिमांड फॉर अर्बन मनरेगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम, ठीक है। इसको हम दिस स्कीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कीम को हम नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस योजना, याद रखना, ट्रेडर्स के लिए है ये एनपीएस, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस मतलब जो दुकानदार वगैरह होते हैं ना उनके लिए है। ये कौन एग्जीक्यूट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द स्मॉल स्केल ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये स्मॉल कौन होते हैं, स्मॉल वो होंगे आपका जिनका एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, उनका 1.5 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ शॉप ऑनर्स, रिटेल ऑनर्स और अदर व्यापारी इसका पार्ट बन सकते हैं। एंट्री एज रहेगी 18 से 40 ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है इस स्कीम के लिए वो नेशनल पेंशन स्कीम में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, नेशनल पेंशन स्कीम से भी उसको पेंशन मिलती रहेगी और यहाँ से भी मिलती रहेगी।
तो इसलिए वो नेशनल पेंशन स्कीम में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो ईपीएफओ या नेशनल पेंशन स्कीम या ईएसआईसी का मेंबर नहीं, सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब इन सब के थ्रू उसे पेंशन नहीं मिलनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वो एक इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वो आपका इनकम टैक्स के ब्रैकेट से बाहर आना चाहिए, इनकम टैक्स के ब्रैकेट से आउटसाइड होना चाहिए, राइट, इनकम टैक्स के ब्रैकेट से आउटसाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका वो बंदा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत भी पंजीकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्कीम भी आपकी पेंशन वाली ही स्कीम है, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना योगी मानधन योजना में आपको जो है वो ये क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज लेबर को पेंशन दी जाती है, और इसमें आपको किसानों को पेंशन दी जाती है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के तहत आती है, और जो किसान मानधन योजना है आपकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के तहत आती है। ठीक है, इट इज अ वॉलेंट्री, मतलब फोर्सफुली नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करना तो मत करो। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, राइट, द एप्लीकेंट्स बिटवीन द एज 18 से 40 ईयर विल हैव टू मेक मंथली कंट्रीब्यूशन, महीने का आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 55 रुपए का, या 55 रुपए से लेके 200 रुपए पर मंथ तक का। ठीक है, 60 साल की उम्र तक, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, अ सब्सक्राइबर वुड रिसीव अ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, मतलब 3000 रुपए की मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे। ठीक है, और अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है किसी वजह से, देन द स्पाउस, देन तो उसकी बेनिफिशियरी की जो भी वाइफ होगी उसको 50% ऑफ द पेंशन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पाउस की डेथ के बाद वो पेंशन खत्म हो जाएगी, किसी और फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगी। दिस फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द वाइफ ऑफ द डेड पर्सन और द सब्सक्राइबर जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से पॉइंट। दिस इज प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन स्कीम। ठीक है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल पेंशन स्कीम। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी याद रखनी है, ठीक है, कि एंट्री एज 18 से 40 ईयर होनी चाहिए, और एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ठीक है, देन ही और सी शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स योर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। देखो ये जो स्कीम है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, और रेमिटेंस का मतलब आप लोगों को पता है, इज द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो ये स्कीम लाई गई है आरबीआई के द्वारा उन सभी इंडियंस के लिए जो इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं। ठीक है, बाहर पैसा भेजते हैं, ठीक है, डॉलर में या फिर रुपीज में, जैसा भी आपका सुटेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी जब इंडियन होता है ना, वो इक्विवेलेंट अमाउंट, सपोज उसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज उसको $2 भेजने हैं। ठीक है, सपोज उसको अपने डॉटर को $2 भेजने यूएसए में, तो वो $2 थोड़ी ना भेज सकता है इंडिया से, वो क्या करेगा, 120 रुपए आरबीआई को देगा। ठीक है, फिर आरबीआई उसको 120 को अपने पास रख के और उसका इक्विवेलेंट $2 यूएसए में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो दिस इज इंडिया, इंडियंस को आपको $2 अपनी डॉटर के पास भेजना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 120 रुपए आरबीआई को देगा, आरबीआई उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएसए में भेज देगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व का बैलेंस बना रहा है, एक साथ बहुत सारा रेमिटेंसेस ना हो जाए, ताकि इससे क्या होगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। फ्लाइट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस पर्पस के लिए आपकी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लाई गई है। ठीक है, इस स्कीम के तहत जितने भी इंडियंस हैं वो 2.5 लाख डॉलर तक का प्रति वर्ष हर साल, ठीक है, पैसा रिमिट कर सकते हैं फॉर अ परमिसेबल सेट ऑफ करंट और कैपिटल, मतलब कुछ ही करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, सारे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, कुछ ही कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन रखी गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि आपकी ओवरसीज एजुकेशन, ट्रेवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स इन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड,
गिफ्टिंग एंड डोनेशंस। ठीक है, ये गिफ्टिंग एंड डोनेशंस आपका किसमें आता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स। आई होप आप लोगों को याद होगा कि करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। ठीक है, देन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि आप $2.5 लाख एक बार में ही भेजो, आप 10 बार भी भेजो, आप 12 बार भी भेजो, आप 15 बार भी भेजो, बट मैक्सिमम आप $2.5 लाख ही भेज सकते हो। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेस। देन इसके बाद है आपका LRS की स्कीम के तहत, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत पीपल उन कंट्रीज में पैसा, इंडियंस उन कंट्रीज में पैसा नहीं भेज सकते हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव कैटेगराइज करी गई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, FATF के द्वारा, जिनको नॉन कोऑपरेटिव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ however the rules do not allow remittances for trading on the फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। इस स्कीम के तहत आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं लगा सकते हो और फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के लिए भी पैसा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आई होप ये स्कीम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपना फॉरेक्स को मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्कीम्स की बात करेंगे। दे आर मोर देन 500 स्कीम्स। ठीक है, मैंने ट्राई करा है कि मैक्सिमम सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते रहना इसमें ना। ठीक है, मज़ा आएगा स्कीम्स पढ़ने में कि इन्हीं स्कीम से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, हम पर्पस भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू।